بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہمارا یہ انڈین ہسٹری کا ٹیسٹ تھا اس کے سلوشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو انڈین ہسٹری کا ٹیسٹ تھا یہ 1912 سے لے کے 1947 تک تھا۔ اس میں جو کوشچنس میں نے ایڈریس کیے ان کے پورے کانسیپٹ کو آپ یوٹیوب کے اوپر ایسپیرنٹس بائی شفیق دوگر کے نام سے نا مختلف فیزز میں مختلف لیکچرز میں وہ کور کیے گئے، آپ سن سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک لاجیکل سیکوینس بنے۔ کچھ ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں یہاں پہ کیے دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سوال تھا وچ سٹی واز اسٹیبلشڈ بائی محمد بن قاسم، ٹھیک ہے، این بی کیو محمد بن قاسم، اٹ واز منصورہ، انہوں نے منصورہ آگے یہاں پہ ڈیولپ کیا تھا۔ 712 میں وہ آئے تھے یہاں پہ۔ کچھ ہسٹری کی بکس میں 711 میں بتایا گیا ہے، تو لیکن وہ 711 میں آئے ہیں اور 712 میں انہوں نے آ کے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ وٹ واز دا ایج، جب وہ آئے ہیں اس وقت ان کی ایج جو تھی وہ 17 سال تھی۔ 3 سال کے بعد ان کو واپس بلا لیا گیا، تو وہاں پہ جو امیاد بنو امیہ کے کیلف تھے انہوں نے ان کو واپس بلایا اور ان کو 20 سال کی عمر میں زندان میں ان کو جیل میں ڈال کے ٹارچر کر کے ان کو مار دیا گیا۔ فیمس سومناتھ کے مندر کے اوپر جو بڑا ایک مشہور اٹیک ہے تو وہ محمود غزنوی، تو اس کو محمود غزنوی کو نے کیا، اس کو بولتے ہیں 1026 میں۔ بیٹل آف خانوا واز فاؤنڈ بٹوین محمد غزنوی، محمود غزنوی اور رانا سنگھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے محمد بن قاسم، پھر غزنوی، پھر غوری، اور غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کے پاس غلام تھے، پھر ان غلاموں نے حکومت قائم کی جن کو قطب الدین ایبک کہتے ہیں، کہ اس نے یہاں پہ پھر وہ دہلی سلطنت قائم کی۔ تو یہ اب ذرا اپنے پاس دیکھ لیں کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ محمد بن قاسم، غزنوی، غوری، دہلی سلطنت، اینڈ پھر مغلس، اور مغلس کے بعد برٹش۔ یہ ساری کی ساری انڈین ہسٹری ہے، اس میں ہم سب میں چلتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹل آف ٹرین کی جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ میں یہ محمود غوری جو تھا وہ ہار گیا تھا، دوسری جنگ میں یہ جیت گیا تھا، پتھوی چوہان اور اس کے درمیان ہوئی تھی یہ جنگ۔ محمود غزنوی کے 17 حملے انڈیا پہ مشہور ہیں، مسلم رول کو سب کانٹیننٹ میں۔ اب یہ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی، غوری، یہ سارے آتے رہے ہیں لیکن انہوں نے یہاں پہ مستقل حکومت قائم نہیں کی۔ یہ آتے تھے فتح کر کے اور اس حکومت کو کنٹرول، جو غوری اور غزنوی آئے یہ افغانستان سے آئے تھے، وہاں کی سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے یہ کنٹرول کرتے تھے یہاں پہ اپنا گورنر بٹھا کے۔ تو یہ قطب الدین ایبک تھا جس نے یہاں پہ خود مختار اور آزاد ریاست قائم کی 1200 اس کے اندر۔ ہاؤ مینی ڈائناسٹیز رول انڈر دہلی سلطنت، دہلی سلطنت کے اندر جو تھی وہ 5 جو خاندان ہیں انہوں نے حکومت کی۔ دہلی سلطنت کے اندر کتنے حکومت کی؟ 5 خاندانوں نے۔ سب سے پہلے جو تھے وہ مملوک تھے، لاسٹ جو تھے وہ لودھی تھے، لودھیوں سے آ کے بابر یعنی کہ مغلز نے چھینی 1526 میں۔ سب سے زیادہ جو ٹینور تھا وہ 94 ایئرس تھا تغلقس کا، اور لاسٹ رولر دہلی سلطنت کا تھا ابراہیم لودھی، جس کو پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر نے اور ظہیر الدین بابر نے جو مغلز کا سربراہ ہے اس نے آ کے شکست دی۔ وچ سلطان از فیمس فار پرائس کنٹرول سسٹم، دہلی سلطنت کا ایک سلطان ہے جو اپنے پرائس کنٹرول سسٹم کی وجہ سے مشہور ہے، تو وہ ہے علاؤدین خلجی، خلجی خاندان کا یہ سردار تھا۔ قوت اسلام مسجد جو تھی وہ کس نے قائم کی؟ تو یہ ایبک تھا جس نے قوت اسلام ماسک جو ہے وہ قائم کی۔ ایک چوغان یعنی کہ پولو کھیلتے ہوئے بھی ایک بادشاہ فوت ہوا تو وہ ایبک تھا۔ پانی پت کی پہلی لڑائی جو تھی وہ 1526 21 اپریل 1526 اس میں ہوئی تھی، کس کے درمیان ہوئی تھی؟ بابر اور ابراہیم لودھی، جس کے بعد کون سی دہلی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مغل رول کا آغاز ہو گیا۔ فاؤنڈر آف مغل رول بابر ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ رولر ان بریڈ ان کابل، یہ بابر نے اپنی جو طرز بابری تھی جو ترکش زبان میں لکھی گئی تھی اس میں یہ وصیت کر کے فوت ہوا تھا کہ مجھے کابل میں دفنایا جائے، تو پھر اس کو یہاں سے جو یہاں پہ جو اس کا مقبرہ تھا اس میں سے اس کی لاش کو نکال کے پھر کابل میں اس کو دفنایا گیا۔
हुमायूं जो था बाबर का बेटा था, इसने आके अपनी जो जैसे ही बाबर फौत हुआ तो ये आया, इसने राज कायम किया, लेकिन एक मकामी एक कमांडर था, उसने शेरशाह सूरी उसका नाम है, उसने इससे सल्तनत छीन ली 1540 में, इसने उससे सल्तनत छीन ली और खुद रूलर बन गया। तज़के जहांगीरी, ये जहांगीर की जो बाबर का बेटा है उसकी सॉरी उसका, ये जहांगीर फिर आता है बाद में, एक बादशाह आता है मुगल्स का, तो उसकी एक तज़के जहांगीरी जो है वो एक किताब है। तो ये किस में लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी, ये पर्शियन में लिखी गई, और तज़के बाबरी जो है वो तुर्किश जुबान में लिखी गई है। जीटी रोड को शेरशाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट किया था, और रोहतास फोर्ट का पूछा जाता है जो झेलम के पास है, वो भी इसी ने कंस्ट्रक्ट किया था, शेरशाह सूरी ने। अकबर पूरे इंडिया का बादशाह 1602 तक बन गया था। अकबर जो हुमायूं का बेटा था, तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है भाजसा, जिसको आप याद रख सकते हैं, BHAJSA। बी से बाबर, ए से एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। ये ग्रेट मुगल्स के बादशाह हैं, 6, इनके लिए ये इस्तेमाल होती है। अकबरनामा, अकबर की जो की जिंदगी के ऊपर एक बुक है वो लिखी है, तो अबू अल फजल, ये उसका एक स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा, उसके कोटियर था, दरबारी था। जजिया को अकबर ने खत्म किया था और गैर मुस्लिमों से, और री इम्पोज किया था औरंगजेब ने आके दोबारा। हु स्टूड अगेंस्ट दीन इलाही, दीन इलाही एक मजहबी, एक नया मजहब उसने क्रिएट कर दिया था। डिटेल है इसके अंदर नहीं मैं जाता, मजहब था या नहीं था, लेकिन एक नया रिलीजियस ऑर्डर इसने बना दिया था अकबर ने, जिसमें वो कहता था कि तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके गुड पॉइंट्स को मैं शामिल करता हूँ और ये इंडियंस का मजहब होगा। तो इसके खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ था मुजद्दद अल अफ़सानी। मुजद्दद अल अफ़सानी का जो रियल नेम है वो है जी, मुजद्दद अल अफ़सानी को जो अहमद सिरहिंदी थे, इनको मुजद्दद अल अफ़सानी कहते हैं, यानी कि दूसरा मुजद्दद। पहला मुजद्दद इमाम गजाली को कहा जाता है। फॉलोइंग मुगल किंग एस्टेब्लिश मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत, राजपूत जो थे वो बड़ी फोर्स थे इंडिया की, तो अकबर ने इनके साथ शादियां कर ली, इनकी बिहारी मल की बेटी से शादी की, फिर यहाँ के कुछ बादशाहों की और गैर मुस्लिम या राजपूत प्रिंसेस से शादी हुई, तो अकबर था जिसने ये शुरू किया था। सिखों का एक गुरु था अर्जुन, उसको जहांगीर ने जो था वो एग्जीक्यूट करवाया, उसको फांसी दी, क्योंकि उसने इसके खिलाफ दारा, इसके खिलाफ जो था वो उसको हेल्प आउट किया उसके भाई को वार ऑफ असैशन में। रियल नेम ऑफ जहांगीर, जहांगीर का रियल नेम सलीम, शहजादा सलीम था, अनारकली और सलीम। तैमूर ने इंडिया को इन्वेड जो किया वो 1398 में किया। तैमूर जो था वो मंगोल्स का एक बादशाह था, उसने इंडिया के ऊपर हमला किया। नादिर शाह ने दिल्ली को फतह किया बैटल ऑफ करनाल के बाद, जीतने के बाद, तो ये 1739 में है। तो या ये मुख्तलिफ आते रहे अटैक करते, और मुगलिया सल्तनत का जो था वो कमज़ोर होती गई। ये इस वक्त जो बादशाह था वो अहमद शाह रंगीला था, जो कि एक फनी सा, मतलब जो नॉन सीरियस बादशाह था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हिमू और अकबर के दरमियान लड़ी गई थी 1556 में, पहली बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। जो हिमू था ये शेरशाह सूरी के बेटे आदल सूरी का जो था वो जनरल था, तो हम अकबर ने इसको मुकम्मल शिकस्त देके पर सूरी खानदान का खात्मा कर दिया था। वैसे मुगलों ने 1540 में जो था वो 1540 और 1545 के दरमियान जो था वो शेरशाह सूरी ने रूल किया, उसके बाद फिर उन्होंने वापस ले लिया था 1555 में तकरीबन, ये दोबारा रूलर बन गया था हुमायूं। व्हेन वाज बैटल ऑफ पॉलिसी, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, और ये नवाब शुजाउद्दौला जो था ये बंगाल का जो था वो इसका सरबराह था। तो ये बैटल ऑफ पॉलिसी 1757 में हुई, तो इसके बाद फिर मुसलमानों की हुकूमत कमज़ोर हो गई। बक्सर की लड़ाई जो थी, जो बक्सर की लड़ाई फिर हुई, मीर कासम जिसने उसके खिलाफ साजिश की थी अपने मुसलमान बादशाह के खिलाफ, उसको बार इन्होंने बरतानिया वालों ने हुकूमत दे दी, लेकिन फिर उसके खिलाफ भी ये उठ खड़े हुए बरतानिया वाले,
ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनको इन्होंने इसने 1764 में जो है वो उसकी 1764 में उसका खात्मा कर दिया हुकूमत का, बैटल ऑफ बक्सर के जरिए। ये बैटल्स को एक ही जगह लिख लीजिएगा सबके। मैसूर की 4 लड़ाइयाँ हुई टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली से, फिर टीपू सुल्तान से। तो वो जो चौथी लड़ाई थी वो 1798 में, 99 में, 2 सालों में ये हुई। और इसके बाद फिर मैसूर पे भी बरतानिया का जो इन्होंने हरा दिया, मैसूर की हुकूमत भी छीन ली। सिख एम्पायर पंजाब के अंदर कायम कर दी महाराजा रंजीत सिंह ने 1800 में। और 1848 में फिर बरतानिया ने दूसरी इसके राजा रंजीत सिंह के बेटे को शिकस्त दे के दूसरी एंग्लो सिख वार के बाद 1848 में पंजाब को भी अपनी सल्तनत में अनेक्स कर लिया, साथ मिला लिया। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो मुझे आपको पता है 1857 में तमाम लोग इंडिया के उठ खड़े हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ और ये वार शुरू हो गई। तो वो उसका जो सेंटर था वो मेरठ था, वहाँ से वो ज़्यादा जो उसको आतश मिली। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो उसके बाद बरतानिया हुकूमत को लगा कि आप हमें चाहिए कि हम इसका ना डायरेक्ट कंट्रोल ले लें, इसका डायरेक्ट कंट्रोल ले लें हम इंडिया का। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के से ख़त्म करके खुद 1858 में खुद कंट्रोल ले लिया इंडिया का। बरतानिया की मलका इंडिया की हुक्मरान बन गई। पहले कंपनी एक प्राइवेट कंपनी कंट्रोल कर रही थी इंडिया। बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, अंग्रेज़ों ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे 1 अक्टूबर 1905 में इसको जो था वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले बंगाल का जो कैपिटल था वो कलकत्ता था। अब जब दूसरा बंगाल बना तो उसको कहा इन्होंने ईस्ट बंगाल, वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी, उसका ढाका इन्होंने कैपिटल बना दिया। हिंदुओं को ज़रा उसमें दुख हुआ, फिर उन्होंने इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू की और 1911 में फिर अंग्रेज़ ने उसको 12 दिसंबर 1911 में उसको ख़त्म कर दिया था, बंगाल के अनलमेंट कर दी थी। दोनों तरीके आपने याद रखने। और लॉर्ड कर्जन था उस वक्त वासराय हिंद, जो गवर्नर जनरल वासराय हिंद जो था लॉर्ड कर्जन था जिसने किया था इसको तकसीम। 1906 के अंदर, दिसंबर 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। पहला जो प्रेसिडेंट था वो सर आगा खान थे। Whenever Muslims granted separate electorate, मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड की शिमला डेपुटेशन में, जो 1906 में जाके मिला था। तो इन्होंने जो था वो अंग्रेज़ों ने 1906 के अंदर जो इस्लाहात आई उसमें उसको 1909 के अंदर जो इस्लाहात आई उसके अंदर उसको उन्होंने मान लिया, ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के जरिए। तो उनको ये मिल गया था फिर मुसलमानों को ये हक पहली दफ़ा कि हमारा कैंडिडेट ही होगा, हम ही उसको वोट करेंगे। यानी इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। मुसलमानों की मखसूस नशस्तें होंगी जिस पर वोट भी मुसलमान डालेंगे और जीते गए मुसलमान कॉन्टेस्ट में मुसलमान करेंगे। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ इंडिया की कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि हिंदुओं ने पहली और आखिरी बार माना कांग्रेस ने कि हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने पे नाराजी हैं। जिन्ना को इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का खिताब सिरोंजी नीदू ने दिया। इस जो लखनऊ पैक्ट की कामयाबी में जिन्ना ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद मुस्लिम मेंबर नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में अंग्रेज को एक मसवदा देने के लिए कि फ्यूचर का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा। उसमें 2 मुसलमान थे, शोएब कुरैशी और इमाम सर इमाम। लाहौर रेजोल्यूशन आपको पता है 1940 में पास हुई। तो लाहौर से बलूचिस्तान से इसको काजी फाइज ईसा के वालिद काजी ईसा ने, दादा काजी फाइज ईसा के दादा काजी ईसा ने उसको जो था वो उसको सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी 1919 में। तो एक डेलीगेशन गया जाके बरतानवी वज़ीर आज़म को मिलने, बताने के खिलाफत की तहरीक में हम मुसलमानों के क्या जज्बात हैं। तो वो उस वक्त के वज़ीर आज़म का नाम था जॉर्ज लॉयड। तो उसने वो खातर खा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से 1932 तक, 3 हुई थी ये। कांग्रेस कांग्रेस में जो इलेक्शन हुए थे, सूबाई इलेक्शन हुए थे 1937 में। तो उसमें कांग्रेस ने 5 सूबों में अपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट बनाई थी, 3 में कोलियन गवर्नमेंट बनाई थी। टोटल 8 सूबों में कांग्रेस की गवर्नमेंट कायम हुई थी। कम्युनल अवार्ड्स बरतानिया ने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, उसके नतीजे में इन्होंने एक कम्युनल अवार्ड जारी किया
16 अगस्त 1932 में, जिसमें इन्होंने मुसलमानों के साथ साथ सिख और नॉन टचेबल को भी सेपरेट राइट दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको भी दे देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सिंध से 28 सीट्स जीती 1946-45 में, बहुत ज्यादा थी, तकरीबन क्लीन स्वीप था। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस, जब कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफा दिया तो 22 दिसंबर को जो था 1939 को मुसलमानों ने कायदे आजम की हदायत पे यौम निजात मनाया। सेकंड लास्ट वासराय जो था वो लॉर्ड वेवल था और लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन था इंडिया का। 3 जून प्लान जो था लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया, ये पार्टीशन प्लान था कि कैसे कैसे हम 2 हिस्सों में पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान को तकसीम करेंगे। लास्ट सीएम जो था वो सिकंदर हयात था, मुसलमान यूनाइटेड पंजाब का, फिर पंजाब तकसीम हो गया और पहला जो तकसीम होने के बाद जो पहला था इंडिया की तरफ वो गोपी चांद था और हमारे पास इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे। रेड क्लिफ अवार्ड 15 अगस्त 1947 को दिया गया। इकबाल ने इलाहाबाद के अंदर जो खुतबा दिया 1930 में, उसकी डेट 29 दिसंबर थी। दैट इज इट। ठीक है जी, बाकी यूट्यूब पे जो मैंने आपको लेक्चर्स मेंशन किए हैं वो आपने ज़रूर सुने।